Okay, good evening everyone. So in the morning we have seen this sum. याद है आपको कि आप भूल गए? We have to find out the rate law. The question was एक मिनट question किधर गया? Let me check. Now the question was write the rate law for the reaction A and B and their concentration was also given. So we have written R1, that is rate constant for the first reaction. So 0.4 raised to x, 0.2 raised to y, that is equals to 4.0 into 10 raised to minus 5. So this is R2, this is R3. What sequence मैंने आपको क्या याद रखने के लिए बोला था? R2 by R1 and R3 by R1. ठीक है? So you can see K and K gets cancelled. और ये तो समझा होगा ना? What should be the value of x to get an answer 3 by 2? So it is 1. And then we have also calculated the value for y. So ये समझा सबको? This is 2 raised to x and 2 raised to y. X का value we have already taken out as 1. So what should be the value of y to get an answer 8? So 2 2s are 4 and 4 2s are 8 होता है. अगर 1 लेते तो 2 2s are 4 ही आता. So y is equals to 2 and that is why rate law can be written as rate is equals to k into a raised to 1 b raised to 2. So order will be third order. याद है ये? I think आपने लिखा नहीं है ना? लिख लो इसको फटाफट से. Write it. हेलो. हाँ ये लिख लो. ठीक है, ये हो जाएगा तो मुझे बोलो. आई विल शिफ्ट माय कैमरा. मी सुपर करेंगे. मी सुपर करें. इस कैमरा ऊपर करो. मिस कैमरा ऊपर करो ना.
Okay, I think everybody finished. चलो अभी next question लिखो. Next question, एक मिनट जरा देखने दो, एक second. 6.2. हाँ, write down the question. For the reaction 2NOBr 2NO2 plus Br2 gaseous, the rate law is for the reaction 2NOBr 2NO2 Br2, the rate law is rate is equals to K into NOBr raised to 2. This is the rate law which is given to you. ठीक है? If the rate of the reaction is, if the rate of the reaction is 6.5 into 10 raised to minus 6 moles per liter per second, if the rate of the reaction is 6.5 into 10 raised to minus 6 moles per liter per second, when the concentration of NOBr is 2 into 10 raised to minus 3 moles per liter, 2 into 10 raised to minus 3 moles per liter, when the concentration of NOBr is 2 into 10 raised to minus 3 moles per liter, what would be the rate constant for the reaction? What would be the rate constant for the reaction? Matlab you have to calculate K. Rate is given and concentration is also given. Okay, just let me check, turn the page. What is given to you? Rate law is given. Rate of the reaction is given as 6.5 into 10 raised to minus 6, and concentration of NOBr is given as 2 into 10 raised to minus 3. We have to calculate K. So what is the rate law? Rate is equals to K into NOBr raised to 2. So K is equals to rate upon concentration of NOBr square. Am I right? K will remain here only. ये नीचे चला जाएगा. Rate is 6.5 into 10 raised to minus 6 divided by 2 into 10 raised to minus 3 the whole square. Now can you solve? 6.5 into 10 raised to minus 6 divided by 2 to the 4, 4 to the 8 into 10 raised to minus 6. ठीक है, ये कैंसिल हो गया, बट न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो गड़बड़ हो जाएगा. तो क्या करोगे, इसको बड़ा कर दो. मेक दिस एज 65 into 10 raised to minus 1 divided by 8. Now take out log of 65 minus log of 8 into 10 raised to minus 1. आगे can you solve? मिस बट वो स्क्वायर है ना. मैम वो 8 कैसे आएगा? 4 आएगा. मिस वो 4 आएगा ना 2 2 सा. Oh, I'm so sorry. 4 आएगा. बराबर बराबर. Sorry sorry. Correct correct. हाँ बराबर है. अच्छा आप 4 बोला. तो नहीं भी शिफ्ट किया तो भी चलेगा. एक मिनट, इसको शिफ्ट ही मत करो. डायरेक्टली log of 6.5 minus log of 4. ठीक है, डायरेक्ट. मेरे दिमाग में क्यूब चल रहा है.
Yes, correct answer. Yes, correct answer. What will be the unit? Per mole, per liter, per second. Per mole, per liter, per second. सिद्धेश रॉन्ग हो गया आपका, चेक करो अच्छे से. यश को एकदम परफेक्ट आंसर मिला है. यस प्रगति, करेक्ट आंसर. यस साक्षी, करेक्ट. यस सृष्टि, करेक्ट. व्हाट अबाउट अदर्स? यस देवेश, करेक्ट आंसर है, बराबर है. हो गया सबका? यस और नो? आंसर इज 1.625. 625 करेक्ट. पर मोल, पर लीटर, पर सेकेंड. करेक्ट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. Read on the next question. 9:30. Next question. The rate of the reaction A plus B gives you product is. The rate of the reaction A of A plus B gives you product is 3.6 into 10 raised to minus 2 moles per dm cube per second. क्या दिया हुआ है अपने को? रेट ऑफ द रिएक्शन दिया हुआ है. ठीक है, कितना है? 3.6 into 10 raised to minus 2. और दिया हुआ है concentration of A is 0.2 moles and concentration of B is 0.1 moles. ये भी दिया हुआ है. Calculate rate constant if reaction is first order in A. देखो मैंने सुबह ही सिखाया था. Reaction is first order in A and second order in B. मिस क्या कैलकुलेट करना? K कैलकुलेट करना है. K पर अपने पास रेट लॉ नहीं है ना, तो रेट लॉ के लिए क्या हेल्प किया उन्होंने? They have said it is first order in A and second order in B. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? Rate is equals to K into A raised to 1 B raised to 2. दिया हुआ नहीं था but they have given us a hint. आया समझ में? A is 1. The reaction is first order in A and second order in B. समझा? रेट दिया हुआ है, कितना है? 3.6 into 10 raised to minus 2. K कैलकुलेट करना है. A is 0.2, B is 0.1 का स्क्वायर. चलो शुरू हो जाओ, सॉल्व करो फटाफट. K का वैल्यू निकालो. K is equals to
3.6 into 10 raised to minus 2 divided by 0.2 into 1 into 10 raised to minus 2 लिखो, समझेगा? मतलब देखो ऐसे किया मैंने, 0.1 मतलब 1 into 10 raised to minus 1 into 10 raised to minus 1, समझा क्या? मतलब 10 raised to minus 2 कैंसिल हो जाएगा, अरे डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2 1 जा 2 8 जा, कितना आंसर है देखो, चेक करने दो। 18 आएगा ना आंसर? यस और नो? है ना, माइनस टू कैंसिल हो गया। 3.6 मतलब ये एक पॉइंट और ये पॉइंट निकल ही गया ना, तो 2 1 जा 2 8 जा 18 आंसर आ गया डायरेक्टली। मोल स्क्वायर dm क्यूब रेज टू माइनस 6 पर सेकेंड। ये पता है कैसे आता है? ये मैंने 11th स्टैंडर्ड में सिखाया था, एक फॉर्मूला था इसका, केमिकल इक्विलिब्रियम में सिखाया था ये कैसे निकालते हैं डायरेक्टली। क्या मिस? ये देखो यूनिट निकालने वाला एक फॉर्मूला सिखाया था मैंने 11th स्टैंडर्ड में, इक्विलिब्रियम चैप्टर में। पढ़ के आना, मैं कल क्वेश्चन पूछूंगी इसके ऊपर, ये कैसे यूनिट कैसे निकाला। देखो ना, हर बार यूनिट अलग आ रहे हैं। यहाँ पे मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड था, यहाँ पे पर मोल स्क्वायर डीएम क्यूब रेज टू माइनस 6 एंड पर सेकेंड है। तो इसका एक फॉर्मूला था जो 11th स्टैंडर्ड में है बुक में, चैप्टर इक्विलिब्रियम में। ये मुझे कल तुम लोग बताओगे मॉर्निंग में, जो भी लेक्चर होगा तब, क्या फॉर्मूला से डायरेक्टली आंसर आ जाता है। हो गया बच्चों, ये सबका इजी था एकदम सम। चलो एक ऐसे ही सेम क्वेश्चन देती हूँ, तुम लोग सॉल्व करके बताओ, ठीक है? रेडी? यस द रेट ऑफ द रिएक्शन, अरे मेरा पेज ही उड़ गया, एक मिनट। द रेट ऑफ द रिएक्शन 2a plus b gives you 2c plus d is, the rate of the reaction 2a plus b gives you 2c plus d is कितना है? 6 into 10 raised to minus 4 moles per dm cube per second। ये क्या दिया हुआ? रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी दोनों भी कितना है? 0.3 मोल्स पर डीएम क्यूब। दोनों भी कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ए और बी दोनों का? 0.3 मोल्स पर डीएम क्यूब, full stop। If the reaction is first order in A, if the reaction is first order in A and zero order in B, if the reaction is first order in A and zero order in B, what is the rate constant? What is the rate constant? आएगा? रेट लॉ लिखो सबसे पहले, फिर सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालो। Will you be able to solve or should I help you? नो मिस। रेट लॉ लिखो सबसे पहले ठीक से एंड देन सॉल्व, आ जाएगा इजी एकदम। एक तो जीरो ऑर्डर ही हो गया, मतलब वो बी वाला निकल ही जाएगा। मिस वो कंसंट्रेशन क्या था उसका लिखा नहीं।
0.3 0.3 था, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 0.3 था, ए का भी और बी का भी। करेक्ट है दिवेश, मेरे पास आंसर नहीं है बेसिकली, बट करेक्ट ही होगा क्योंकि वो आपके इसमें दिया हुआ है, ट्राई योर ब्रेन, ट्राई दिस, यूज योर ब्रेन, ऐसा कुछ तो है, उसका क्वेश्चन था वो। लेट्स सी व्हाट अदर्स आर गिविंग आंसर। आई थिंक तुम्हारा राइट ही है। हाँ बराबर है यश, करेक्ट करेक्ट है दिवेश, बराबर है आंसर, यश का भी सेम आंसर है। चलो व्हाट अदर्स आर डूइंग। चलो बच्चों, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, नहीं आ रहा है क्या? शुड आई हेल्प यू? रेट इज इक्वल्स टू के इनटू फर्स्ट ऑर्डर विथ ए बट जीरो ऑर्डर विथ बी, तो ये तो चला ही गया। रेट दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻⁴, के निकालने का है इंटू 0.3, इधर लेके जाओ, इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा, ऊपर जाके आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻3। ओवरऑल आंसर आना चाहिए इसका। आया क्या सबको? जीरो है मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ना, तो ये चला ही गया, तो ये 3 नीचे जाएगा, तो 3 इंटू 10⁻⁻1 करो, -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा, 3 और 6 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 10⁻³ आंसर आएगा। 1 मिनट का भी आंसर नहीं था, 1 मिनट का भी, इसके लिए इतना टाइम लगा रहे हैं। हो गया सबका? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फॉर द रिएक्शन 2a + 2b gives you 2c + d। फॉर द रिएक्शन, अभी थोड़ा सा अलग समय और बहुत सिंपल है। फॉर द रिएक्शन 2a + 2b gives you 2c + d if concentration of A is double। क्या हुआ? हेलो, मैंने बोला फॉर द रिएक्शन और यही रिएक्शन है, उसके आगे कुछ बोला ही नहीं मैंने। फॉर द रिएक्शन दिस, राइट डाउन दिस, if concentration of A is doubled, if the concentration of A is doubled at constant B, the rate increases by the factor of 4। the rate increases by the factor of 4। मतलब क्या बोले, अगर A का concentration डबल किया तो रेट ऑफ द रिएक्शन 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, फुल स्टॉप। if concentration of B is doubled, if concentration of B is doubled, the rate is also doubled, the rate is also doubled, full stop,
write the rate law of the reaction. Write the मिस rate मेरा ऑडियो law एक बार रिपीट करो ना प्लीज. of the reaction. For the reaction 2A plus 2B gives you 2C plus D. ठीक है. If concentration of A is doubled at constant B, if the concentration of A is doubled at constant B, the rate increases by the factor of 4. The rate increases by the factor of 4. Full stop. If the concentration of B is doubled, if the concentration of B is doubled, the rate of the reaction is also doubled. The rate of the reaction is also concentration is doubled. If the concentration of B is doubled, the rate is also doubled. Full stop. Write the rate law of the reaction. Write the rate law of the reaction. Full stop. ठीक है. चलो, what is the question now? This is a reaction. We have to find out the rate law. अभी देखो कैसे solve करना है इसको. Consider the reaction. Oh, sorry. Consider. नहीं यश ऐसा नहीं करना है. रुको मैं बताती हूँ. Let's consider the rate law B. पहले consider करेंगे कि rate is equals to K into A raised to X B raised to Y that I am going to consider as R1. मुझे क्या दिया हुआ है? They have said find out the rate law, correct? So to find out the rate law, I have to get the value for X and Y also. So I will consider the rate law be A raised to X, B raised to Y, that is your R1. Now read the condition number 1. What is the condition number 1? If the concentration of A is doubled, rate of the reaction is increases by the factor of 4. मतलब R2 by R1 4 times हो जाएगा, ठीक है? And rate कैसे हो जाएगा? Rate is equals to K into concentration of A double हो गया, समझा? Raised to X, B raised to Y, this is your R2. ये समझा इतना क्या किया मैंने? I have made concentration of A double and R2 by R1 will become 4 times क्योंकि increase हुआ. अगर decrease हुआ बोलते तो क्या लिखते? 1 by 4. Hello? कौन था ये? Understood this much? First of all, tell me. आवाज कम आ रही है. हेलो. यस मैम. हेलो, अभी आ रही है आवाज? yes. सबको आ रही है ठीक से? हेलो. यस मैम. हाँ ठीक है. मैंने क्या बोला यहाँ पे देखो. We will consider rate law is rate is equals to K into A raised to X B raised to Y that is equals to R1. Correct? After that, what I have said, condition number 1. What is the condition number 1? If the concentration of A is double, तो A का concentration मैंने double कर दिया, तो rate of the reaction कितने से बढ़ गया? 4 से बढ़ गया. मतलब R2 by R1 कितना हो गया? 4. ये समझा? अगर मैंने बोला होता कि rate of the reaction decreases by 4, तो आप 1 by 4 लिखते. इतना समझा? अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे? R2 by R1 कर देते हैं. R2 by R1 is equals to K into 2 into concentration of A raised to X, concentration of B raised to Y divided by K into concentration of A raised to X, B raised to Y. ये दोनों कैंसिल हो गया. K और K भी कैंसिल हो गया. This is 4. ठीक है. A और A भी कैंसिल हो गया. 2 raised to X. What should be the value of X to get an answer? 4. 2. Very good. So X is equals to 2. मुझे 2 मिल गया. फर्स्ट कंडीशन समझा कि नहीं समझा इतना बोलो. अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा ब्रैकेट क्यों डाला. तो पहले ऐसा ब्रैकेट होता है, बाद में ऐसा होता है और उसके ऊपर ऐसा होता है. मैथ्स का रूल है वो. समझा ये पार्ट? एवरीबॉडी अंडरस्टूड कंडीशन नंबर 1?
Yes, miss. यस, सबको समझा? एवरीवन? हाँ ठीक है. अभी व्हाट इज माय कंडीशन नंबर 2? they have said if the concentration of V is double, rate of the reaction is also double. तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? R3 by R1 is equals to 2, है ना? कंडीशन नंबर 3 क्या है? 2 क्या है? R3 by R2 डबल हो जाएगा. एंड व्हाट इज R3? आई विल राइट डाउन योर रेट इज इक्वल्स टू K इंटू, अभी A तो ऐसे ही रहने वाला है और मेरा जो B है इट विल गेट डबल. क्लियर? दिस इज योर R3. इज इट वेरी क्लियर? Now I will write down R3 by R1. So it is K into concentration of A raised to X, 2 into B, concentration of B raised to Y, sorry, divided by K into concentration of A raised to X, B raised to Y. ये डबल है, ये कैंसिल हो गया, ये दोनों भी कैंसिल हो गया, ये दोनों भी कैंसिल हो गया. 2 raised to Y. What should be the value of Y to get an answer 2? Hello? 1, miss. What should be the value of 1 ना? तो y is equals to 1. x और y मिल गया. Therefore rate law is, अभी ये क्या लिखा था हमने, क्या कंसिडर किया था? a raised to x, b raised to y. तो rate law क्या हो जाएगा? rate is equals to k into a raised to 2, b raised to 1. ये हो गया सम सॉल्व. We will get 4 marks. इजी था. क्लियर? अभी यहाँ पे हम लोग को देखो R1, R2, R3 पहले जैसा नहीं दिया तो हम निकालेंगे. R1 क्या था जो हमने कंसिडर किया? R2 क्या है? कंडीशन नंबर 1. R3 क्या है? कंडीशन नंबर 3. और मैंने क्या बोला था सीक्वेंस याद रखने के लिए? R2 by R1 एंड R3 by R1. समझा सबको? यस. चलो कॉपी कॉपी करो फटाफट से. कंडीशंस ठीक से पढ़ने का. अगर ऐसा ऐसा बोला होता कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिक्रीजेस बाय द फैक्टर ऑफ 2, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? 1/2. रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस बाय द फैक्टर ऑफ 8 तो 1/8. इंक्रीजेस बाय द फैक्टर ऑफ 8 तो सिर्फ 8 लिखने का. समझा? लिखो, इतना कॉपी करो. लेट अस कंसिडर द रेट लॉ बी. rate is equals to k into a raised to x, b raised to y, that is your R1. and then condition number 1 यहाँ तक लिखो. पहले दिख रहा है ना ठीक से? मिस कैमरा ऑफ किया. मिस कैमरा बंद होगा. अरे रुको रे बाबा, आ गया ना? चलो लिखो. दिख रहा है अभी? हाँ मिस ऊपर पकड़ो. हाँ ओके. पूरा काम पे लगाते हैं वो लोग मुझे. नीचे करो, ऊपर पकड़ो, साइड में करो. हाँ मैं भी लूंगी बदला. कॉलेज चालू होने दो. चलो लिखो फटाफट. समझा ना अच्छे से? ये 4 मार्क्स के लिए आता है. इट्स वेरी सिंपल. ओनली हैव टू कंसीडर द कंडीशंस प्रॉपर्ली. हो जाएगा तो बोलो. हाँ फिर मैं ऐसे एक और क्वेश्चन लेती हूँ.
हाँ तुम्हारा अंदाजा सही था यश, बट ऐसे सॉल्व करने का था, समझा? मिस वो मैं मेरे को सुन के ही आइडिया आया कि वो वैसे ही होगा। हाँ सही है ना, तो एकदम अंतर्यामी है भाई। पर वो हमेशा सही होगा इसलिए ऐसे मत जाना। ये सॉल्व करने कितना टाइम लगा, देखो 5 मिनट लगेगा तुम लोग को। कंडीशन पढ़े सॉल्व किया, कंडीशन पढ़े सॉल्व किया, खाली कैंसिलेशन है। मैंने क्या बोला, ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है ना उसमें लॉग बहुत कम लगेगा, लास्ट पार्ट पे थोड़ा थोड़ा लगेगा। ये भी काफी बड़ा चैप्टर है अपना, ऐसे मॉर्निंग इवनिंग लेक्चर हो जाएगा तो हो जाएगा 1 डेढ़ हफ्ते में अपना चैप्टर। मतलब अक्टूबर है ना ये, मिडल ऑफ अक्टूबर तक अपना ये चैप्टर भी हो जाएगा। हो गया बच्चों? डन? चलो ठीक है, सबका हो गया बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाक से। बोलू? हाँ बोलो। ये भी थोड़ा ऐसे ही टाइप का है। कंसिडर, कंसिडर, ये सब में ना क्वेश्चन लंबे लंबे रहते हैं बट सोल्यूशन एकदम छोटा सा रहता है। कंसिडर a plus b arrow p, मतलब प्रोडक्ट। a plus b gives you product if, अभी ध्यान से सुनना, if concentration of a is doubled, the rate of the reaction is also doubled. If concentration of a is doubled, the rate of the reaction also doubled. If concentration of a is tripled, second condition हो गया ये, रिपीट द रेट ऑफ the rate of reaction also doubles. पहला condition क्या था? If concentration of A is doubled, the rate of the reaction also doubles. ठीक है? दूसरा condition, if the concentration of A is tripled, मतलब 3 times. If the concentration of A is tripled and that of B is doubled, A triple हो गया और B double हो गया, the rate increases by the factor of 6. The rate increases by the factor of 6, full stop. What is the order of the reaction? What is the order of the reaction with respect to each reactant? What is the order of the reaction with respect to each reactant? Question mark. Determine the overall order of the reaction. Determine the overall order of the reaction. चलो शुरू हो जाओ, कैसे करेंगे? सबसे पहली लाइन क्या आएगी बोलो? कंसिडर और लेट अस कंसिडर द रेट लॉ बी। पहले तो रेट लॉ निकालना पड़ेगा ना, उससे फिर हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो रेट क्या आएगा? रेट इज इक्वल्स टू के इंटू ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाई, ये हो गया R1। कंडीशन नंबर 2, क्या कंडीशन नंबर 2 है? अगर रेट ए का बढ़ाएंगे और कॉन्सेंट्रेशन ए का डबल करेंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी डबल हो जाएगा, मतलब R2 by R1 डबल हो जाएगा एंड रेट इज इक्वल्स टू के इंटू ए का डबल करेंगे ना, 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाई। चलो शुरू हो जाओ। दिस इज योर R2। पहले इतना सॉल्व कर सकते हैं ना, R2 by R1, इतना बताओ, मैं आपको हेल्प कर देती हूँ। चलो इससे आप पहले करोगे R2 by R1, आपको कुछ तो आंसर मिलेगा।
नाउ व्हाट इज कंडीशन नंबर 2? कंडीशन नंबर 2 क्या बोला है? इफ A is tripled and B is doubled, मतलब और क्या बोला है? R3 by R1 हो जाएगा 6 टाइम एंड रेट इज इक्वल्स टू A ट्रिपल हो जाएगा, मतलब 3 into concentration of A raised to X, और B हो जाएगा डबल ना, concentration of B raised to Y, ये हो गया आपका R3। तो अभी R3 by R1 करो, आएगा कि नहीं आएगा इतना बोलो पहले। आर यू एबल टू सॉल्व दिस? एक्स और वाई का वैल्यू मिल यस जाएगा। चलो ट्राई करो, नहीं आएगा तो आई एम देयर, डोंट वरी, बट ट्राई। आर यू ऑल एबल टू सॉल्व? शुड आई हेल्प यू? नो क्या मिस। मिला इधर से, यहाँ से क्या मिला? एक्स मिला कि वाई मिला? जरूरी नहीं मिस है कि एक्स हमेशा मिला, एक्स मिले, कभी कभी कितना आया? 1 मिला मिस। 1। बाकी सबको? Yes, x is equal to 1. सबको मिला? यस दिवेश, प्रगति, कशिश, बाकी के लोग? प्रियंका, सृष्टि, साक्षी, क्या आया? एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू 1 आ गया सबका? 1 मैम। ओके ठीक है, चलो मतलब तुम लोगों को समझ गया सब अच्छे से। ये बच्चों 4-4 मार्क्स के लिए आता है, देखो कितना फालतू समय, कितना इजी है। हाँ करेक्ट है, बराबर है सारांश। अभी R3 by R1 करो, और x का वैल्यू अपने को पता है तो वो आप सब्स्टिट्यूट करके आंसर y का निकाल सकते हो। टेक्स्ट बुक में से मत करना, टेक्स्ट बुक में पूरा कंफ्यूज करके दिया हुआ, तुम लोग पागल हो जाओगे। ये सीक्वेंस याद रखो, R2 by R1 एंड R3 by R1, बस ये सीक्वेंस ही फॉलो करने का। मतलब आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, डेफिनेटली विल गेट द आंसर, बट कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक ही चीज याद रखो, R2 by R1 एंड R3 by R1, बस। हो जाएगा तो बोलो मुझे, ठीक है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। What is the value of y? y भी 1 आया? ओके Yes, miss. ठीक है, सबको आया क्या बच्चों? आई होप सबको आता है ये। नहीं आता है तो पूछ लो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल सॉल्व। 2 मिनट लगेगा सॉल्व करने में। Why people are leaving in between? I don't understand. ज्वाइन होते हैं 30-35 लोग, फिर रह जाते हैं 23 लोग, मतलब क्या है? अटेंडेंस लगा के भाग जाते हैं क्या?
इतना इजी आप लोगों को लग रहा है ना, ये सब हो जाएगा, वीडियोस देख लेंगे, इट इज नॉट सो सिंपल। व्हेन यू सॉल्व लाइव ना, उसका मजा अलग ही रहता है, तभी और अच्छे से समझता है। बोलो गलत बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ? फिर हम लोग डिस्कस करते हैं ना, आप वीडियो में थोड़ी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, डाउट होएगा तो यू कैन नॉट डिस्कस। सेकेंड वाला करूँ? ठीक है, ठीक है, रुको। R3/R1, so it is 3a raised to x 2 b raised to y, k भी आएगा इधर, सॉरी मैं k लिखना भूल गई, k। और ये क्या था? a raised to x b raised to y। R3/R1 6 हो गया, ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, मतलब 3 raised to x into 2 raised to y। 6 is equals to 3 raised to 1 into 2 raised to y आएगा। प्रगति बराबर है कि नहीं? Because we have taken out the answer for x as 1। अभी 3 2 is 6। What should be the value of y to get an answer 6? बोलो। y is also 1। समझा प्रगति? हाँ हाँ क्लियर? समझा। हाँ ओके ओके। हाँ अभी देखो क्या पूछा था क्वेश्चन। गिव द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट। तो अगर मैं रेट लॉ लिखती हूँ तो रेट इज इक्वल्स टू k इंटू a रेस टू 1 एंड b रेस टू 1। हाँ ओवरऑल ऑर्डर इज करेक्ट 2, बराबर है दिवेश। तो इट इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a, बराबर है कि नहीं? एंड ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b ऑल्सो। ओवरऑल ऑर्डर कितना आएगा जल्दी बोलो? x प्लस वाई, मतलब 2 सेकेंड ऑर्डर। सम सॉल्व, 4 मार्क्स आपके पॉकेट में। बोलो क्या डिफिकल्ट है? एवरीबडी अंडरस्टूड? कंडीशन रीड करने का 2 कंडीशन रहेगा ही रहेगा, और पहला कंडीशन हम बनाएंगे कि लेट द रेट लॉ बी, अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए तो। अगर इंक्रीज बोला तो वैसे लिखने का, डिक्रीज बोला तो खाली 1 बाय कर देने का, सब वैसे ही रहेगा, ऑल द स्टेप्स विल बी सेम। ठीक है चलो, अभी मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे दिया हुआ है, वो एक सॉल्व करो, फिर मैं आपको आगे का थ्योरी पार्ट सिखाती हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। 2 मिनट्स नहीं, 1 मिनट दे दो बस। टू पेज पे जाती हूँ। एक ही मिनट दे दो हाँ बच्चों मुझे। डिवाइड द रेट फॉर सॉल्व। ओके, ये आपका जो सवाल है वो है, कहाँ से दिया भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्वेश्चन नंबर 3 का 17। ठीक है, क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 का 17। क्वेश्चन है पेज नंबर 137 पे। अभी सॉल्व करेंगे सब लोग मेरे सामने, एक ही क्वेश्चन है ऐसे टाइप का। बोलूं? फॉर द रिएक्शन 2a plus b gives you products. For the reaction 2a plus b gives you product. Find the rate law. Find the rate law and the order of the reaction. Find the rate law and the order of the reaction from the following data. Also calculate rate constant। अभी मैंने इसमें ना 2 चीजें ऐड कर दी, एक तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऐड कर दिया और एक रेट कांस्टेंट ऐड कर दिया। ठीक है चलो, डेटा क्या है? हाँ, for the reaction 2a plus b gives you product. Find the rate law and order of the reaction from the following data and also calculate rate constant, मतलब कि k भी निकालना है।
चलो मैं आपको अभी डेटा दे देती हूँ। डेटा क्या है, एक मिनट, मेरे को पेज निकालने में पहले। चलो डेटा ये है आपका कि concentration of A in molar is 0.3, 0.6, 0.6. Concentration of B in molar 0. Sorry, इधर है 0.05, 0.05, 0.2. ठीक है. Rate is given as 0.15, 0.30, 1.20. आएगा करने को एकदम पहला सम जो सुबह सिखाया था, अभी जो आपने लिखा यस मिस। बिल्कुल वैसा है। हाँ, R1, R2, R3, फिर R2 by R1 करो, R3 by R1 करो, रेट मिल जाएगा, ऑर्डर मिल जाएगा, और तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन यूज करके आप रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो। चलो, यू विल गेट ओनली 7 मिनट्स टू सॉल्व। 7 मिनट्स में मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 5 मिनट में हो जाएगा। यू विल गेट 7 मिनट्स टू सॉल्व। चलो 9-7 को वी विल डिस्कस। फास्ट करो एकदम, कहीं अटक गए तो आप पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम।
प्रगति y4 कैसे आएगा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 5 हो जाएगा। हाँ y1 बराबर है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मैं डर गई क्योंकि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मैक्सिमम 3 तक जा सकता है, उसके ऊपर नहीं। चलो आंसर आ भी गया प्रगति का। व्हाट अबाउट अदर्स? के सॉल्व करो, कोई भी इक्वेशन यूज कर लो, उसके ऊपर एक्स और वाई का वैल्यू डाल के यू कैन सॉल्व के। करोगे? प्रगति समझा मैंने क्या बोला? करो। चलो हो गया सॉल्व। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? एक्स कितना आया? नहीं आ रहा है क्या तुम लोग को आंसर सॉल्व करने को? हेलो। x1 हाँ प्रगति सही है, के भी करेक्ट निकाल दिया, वेरी गुड। एक्स इज 1, एवरीबॉडी गॉट। वाई इज ऑल्सो 1, एम आई yes राइट? miss yes चलो रेट लॉ क्या आ जाएगा? रेट इज इक्वल्स टू के इंटू ए रेस टू 1 बी रेस टू 1। अब तीनों में से कौन सा भी इक्वेशन यूज कर लो। पहला वाला यूज करें। रेट कितना दिया हुआ है? 0.15 के इंटू 0.3 रेस टू 1 0.05 रेस टू 1। समझा? आप सेकेंड भी यूज कर सकते हो, आप थर्ड भी यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो। सो के इज इक्वल्स टू 0.15 डिवाइडेड बाय 0.3 इंटू 0.05। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 5 3 का 15 इंटू 10⁻⁴ -3 है ना? तो ये कैंसिल हो गया। 10⁻³ ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +3। ना आंसर इज 10। ओके समझा क्या सबको? मिस वो R3/R1 किया ना तो वो कैंसिल नहीं हो रहा था, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया इसके लिए। आया कि नहीं आया आंसर? आया यस आंसर? कि मैं सॉल्व करूं? yes miss हाँ मिस अब भी मीन्स आया वो वाई का वाई का। वैल्यू 1 कैसे वाई आया? का अच्छा थोड़ा गलत साक्षी हो रहा का, साक्षी का नहीं आया आंसर। देखो R3/R1। ठीक है मैं सॉल्व करती हूँ सेकेंड वाला। साक्षी को भी नहीं आया। R3 is k into 0.6 raised to x 0.2 raised to y divided by k into 0.3 raised to x 0.05 raised to y। ठीक है तो R3 कितना था? 1.2 डिवाइडेड बाय R1 is 0.15। ये दोनों कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाय 0.3 रेस टू x 0.2 डिवाइडेड बाय 0.05 रेस टू y। ठीक है अभी इसको ना शिफ्ट कर दो सारे पॉइंट ताकि आपको इजी पड़े। 10⁻², 15 इंटू 10⁻²। सैटरडे को बोलिए। मिस। हाँ मिस आया। एक मिनट हाँ। दैट इज इक्वल्स टू 3 1 3 2 2 रेस टू x। अभी इसको ना 20 बनाओ इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻²। जब ये ऐसे दिखेगा ना बहुत पॉइंट पॉइंट तो अपना गड़बड़ होता है, तो सब शिफ्ट कर देना चाहिए। कैंसिल हो गया। 5 4 जा है ना? तो अभी कितना हो जाएगा? 15 1 15 8 जा, तो 8 इज इक्वल्स टू 2 रेस टू x 4 रेस टू y
अभी अपने पास x का वैल्यू कितना आया था 1 ना, तो 8 is equals to 2 raised to 1, 4 raised to y. अब बोलो साक्षी, what should be the value of y to get an answer 8? साक्षी, सॉरी किसने पूछा था? सिद्धेश, सिद्धेश एंड साक्षी। y 1 आएगा ना, तो 4 2 8 हो जाएगा, तो y is equals to 1. करेक्ट। नाउ अंडरस्टूड? ये समझा k कैसे सॉल्व किया? इसके बाद आपको k भी सॉल्व करना है, करो ये, पहले इतना लिखो। ओके, राइट डाउन। दिस सम इज पेज नंबर 137। मैंने स्टार्टिंग में बोला था सम नंबर 17, थर्ड क्वेश्चन। ओके दिवेश, पर मैंने उसमें ये ऐड कर दिया, ये वाला पार्ट ऐड कर दिया, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k and order of the reaction. Have you all understood? You can use any of these equation to solve that. चलो समझ गया इतना अच्छे से सबको? ओके चलो, आई होप यहाँ तक order of the reaction, rate law is very very clear to everyone. Now we will go for the next part. क्या सिखाऊं मैं तुम लोग को? अभी छोटा सा molecularity सिखाती हूँ, ठीक है? चलो, now we will do next topic, molecularity of the reaction. ठीक है? What is molecularity of the reaction? And first of all, we should know what is complex reaction and what is elementary reaction. Correct? If I'm saying I'm converting A into C, this is called as complex reaction. Okay? But if I'm going to give the steps over here, I will say A is first converted into B and then B is converted into C. So these two, alag alag, they are called as elementary reaction. Means what is elementary reaction? These are the basic reactions which cannot be broken down further into the simpler. ठीक है? The reactions are the single step reaction, मतलब वो एकदम इसके बाद आप उसको और break नहीं कर सकते. ठीक है? So these reactions cannot be broken down further into the reactions are called as a reaction, and this is called as complex reaction which can be broken down. Now, if you want to take out the molecularity of the reaction, you cannot see a complex reaction. To see the molecularity of the reaction, you should go to the different steps of the elementary reaction. ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पर एक example ले लेती हूँ. I am writing over here O3 gives you O2 plus O. So what is molecularity of reaction in this case? You have to see the number of moles of reactant. Number of moles of reactant. यहाँ पे हम लोग ना प्रोडक्ट को भाव ही नहीं देंगे, हम लोग को किसको सिर्फ देखना है? रिएक्टेंट को. How many moles of reactant has been there? Only one. So it is called as unimolecular reaction. ठीक है? It is called as unimolecular reaction. Okay. अभी मैं ना उल्टा लिखती हूँ. मैं लिखती हूँ यहाँ पे O3 plus O gives you 2O2. Correct? What is the molecularity of the reaction? ये one और ये one. So it is called as bi
molecular reaction. Okay, it is called as bimolecular reaction. Okay, suppose I'm writing here 2NO2 gives you 2NO plus O2. What is the molecularity of the reaction? Here it is 2, so it is called as bimolecular reaction. Samjha? So what is molecularity of the reaction? That is nothing but number of moles of reactants. Reactants are important. तो जितने number of moles of reactant होंगे वो आप लिखोगे, it will be your bimolecular, that will be the molecularity of the reaction. I'm writing मीन्स अगर दो C2H5I. रिएक्टेंट्स होंगे तो ऐड करेंगे. हाँ, यस यस, दो रिएक्टेंट होगा तो ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे ऐड किया, देखो यहाँ पे दो रिएक्टेंट था तो 1 + 1 2 हो गया, तो इट इज बायोमोलिकुलर रिएक्शन. समझा? मैं बताती हूँ और बताती हूँ. C2H5I gives you C2H4 + H. अभी मुझे प्रोडक्ट से तो कुछ लेना देना ही नहीं है. व्हाट इज द मोलिकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन? ये देखने का नंबर, कोएफिशिएंट कितने मोल्स है? 1. व्हाट इज द मोलिकुलरिटी? अरे बोलो. 1 यूनिमोलिकुलर. यूनिमोलिकुलर है. Yes, it is called as unimolecular reaction. Okay, अभी मैं एक और रिएक्शन देती हूँ, बताओ क्या है. ठीक है, अब मैंने क्या बोला? You have to always see the molecularity of elementary reaction, not for the complex reaction. ठीक है, it is a general observation that the order and the molecularity generally ऐसे होता है कि order and molecularity almost same होता है. If your reaction is first order, generally its molecularity is also unimolecular. If your reaction is second order, its molecularity is bimolecular. Obviously, there are some exceptional cases which we will study later on. ठीक है, तो अगर आपका रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो वो बेसिकली यूनिमोलिकुलर होना चाहिए. अगर आपका रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है तो इट शुड बी बायमोलिकुलर रिएक्शन. इतना क्लियर हो गया? दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी. नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन? बाद में लिखो ये सब, पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ. एक मिनट. पेज चलो हो गया. व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी? ठीक है, it is experimentally determined value. You are writing this order experimentally. कैसे पता चला? Because we are writing x and y experimentally. ये आपको पता चलता है theoretically. You are just seeing the reaction and you are telling that it is the molecularity. Correct? It is the sum of exponents. Am I right? Which will give you the order of the reaction. It is nothing but number of moles of reactants which are present in the reaction. Okay, now here it may be an integer, it can be in the fraction, it can be 0 also, and here only can be an integer. आप ऐसे नहीं लिख सकते हो ना, माइनस वगैरह तो मोल्स नहीं लिख सकते. जनरली हम क्या लिखते हैं? It is a proper integer. Clear हो गया? This is the differentiation between molecularity and order. ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. मैं सब एक्सप्लेन करती हूँ, कल सुबह लिखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. What is rate determining step? The slowest step of the reaction is called as rate determining step. The slowest step of the reaction is called as rate determining step. ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. Suppose I'm writing, I have a complex reaction 2NO2Cl gets converted into 2NO2 plus Cl2. This reaction is taking place into two different steps. So step number 1 is NO2Cl NO2 plus Cl. ये है आपका स्लो स्टेप. दे विल स्पेसिफाई कि वो स्टेप स्लो है कि फास्ट है. ठीक है, स्टेप नंबर 2 is NO2Cl plus Cl will give you NO2 plus Cl2 and they will specify it is the fast step. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि which step is the rate determining step? It is also called as RDS. ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा.
RDS, rate determining step. इन दोनों में से स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है? फर्स्ट स्टेप, I will say step number 1 is called as RDS, rate determining step. समझा? They will specify मिस, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट slowest करेंगे? step. ये दिया रहेगा ऐसा, ये इक्वेशन दिया रहेगा, 1 और 2 दिया रहेगा, उसके आगे स्लो एंड फास्ट लिखा रहेगा. अपने को कुछ नहीं करने का है. केमिकल काइनेटिक्स का पता है सबसे अच्छा चीज क्या है? सब दे देते हैं और वही क्वेश्चन पूछते हैं. They will give you it is slow, it is fast. और क्वेश्चन क्या पूछा है? Which one of the following is rate determining step? तो आप क्या लिखोगे? Step number 1 is slow step, therefore it is rate determining step. समझा? अभी दूसरा क्वेश्चन, सपोज ना अगर तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे ये छुपा दिया, ये नहीं लिखा हुआ है, बट उन्होंने मुझे इस बार रेट दिया हुआ है. रेट इज इक्वल्स टू K इंटू NO2Cl. ठीक है, अगर ये मुझे दे दिया और पूछा है कि विच इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बताओ NO2Cl इसके रिएक्टेंट में है, ये अकेला रिएक्टेंट यही है ना, इसके रिएक्टेंट में दो रिएक्टेंट है. समझ रहे हो बात को? रेट लॉ हमेशा सारा का सारा रिएक्टेंट लिखा जाता है, तो ये रेट लॉ का जो रिएक्टेंट है वो अकेला यही है. तो ये क्या हो गया? स्टेप नंबर 1 इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. स्लो स्टेप क्यों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है? क्योंकि ये जो स्टेप है इट इज वेरी फास्ट, तो आपको समझेगा नहीं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट हो गया. बट ये जो स्टेप है ये सबसे स्लो स्टेप है, तो ये स्टेप को आप पकड़ के कंसिडर करोगे एंड यू विल टेल ओके दिस इज द फाइनल रेट ऑफ द रिएक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दैट इस रिएक्शन को भाव मिल जाएगा जो स्लो रिएक्शन है. समझा? So sometimes they will write down slow and fast and they will ask you which is the rate determining step. Sometimes they will not write down slow and fast, they will give you the rate of the reaction. अब rate of the reaction देख के ये समझ में आ रहा है कि slow कौन सा step हो सकता है, क्योंकि rate determining step meaning क्या है? ऐसा step जो rate बता रहा है. तो कौन सा step में NO2Cl है? आप बोलोगे मिस इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन इसमें तो एक ही रिएक्टेंट है, इसमें दोनों रिएक्टेंट है. दोनों रिएक्टेंट वाला लिखा है क्या इधर? नहीं ना, एक ही रिएक्टेंट वाला लिखा है. मतलब स्टेप नंबर 1 इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. आया समझ में? बोलो बच्चों. दिवेश प्लीज अपना Yes. ऑडियो म्यूट करो बच्चों. दिवेश प्लीज म्यूट योरसेल्फ. हाँ बोलो, ये समझा सबको? तो अब तक आपने क्या सीखा? व्हाट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन. कल लिखेंगे ये सब डेफिनेशन. व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन? इट इज द सिंपलेस्ट रिएक्शन व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द फर्दर रिएक्शंस. ठीक है, मिस, ये इसके बाद दोनों में आपने मतलब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इन दोनों में देखो ना, अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ है और बोला इसको ब्रेक कर दिया इन दोनों में, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया ना, और इसको ब्रेक किया मतलब ये दोनों एलिमेंट्री रिएक्शन है. They will हाँ give मिस, you और everything. अपने को इसको कुछ ब्रेक करने नहीं का कर नहीं. सकते ना, तो फिर इसको ये नहीं ब्रेक कर एलिमेंट्री. सकते. यस, ये भी एलिमेंट्री हो गया, ये भी एलिमेंट्री हो गया. अब पता है इसमें और भी बोल सकते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर है ये स्टेप, है कि नहीं? बोलो. दिस स्टेप इज यूनिमॉलिक्यूलर, दिस स्टेप इज बायमॉलिक्यूलर. एलिमेंट्री रिएक्शन का ही हम लोग मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं. देखो ना, एक ही मोल है, तो दिस रिएक्शन इज स्लो एंड यूनिमॉलिक्यूलर. दिस स्टेप इज फास्ट बट इट इज बायमॉलिक्यूलर. आया समझ में? तो उसके बाद हमने क्या देखा? व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन? मॉलिक्यूलरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन दैट. उसके बाद आपने देखा कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में क्या रिलेशन है. तो जनरली ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि फर्स्ट ऑर्डर हमेशा यूनिमॉलिक्यूलर होता है, सेकेंड ऑर्डर हमेशा बायमॉलिक्यूलर होता है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, वो हम बाद में पढ़ेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ेंगे. ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखा? RDS. व्हाट इज RDS? RDS is called as rate determining step, means the slowest step of the reaction is called as rate determining step. अभी मैं आपको ना एक सिंपल सा क्वेश्चन देती हूँ, तुम लोग मुझे बताना कि कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है. ठीक है, अभी लिखना कुछ नहीं है, खाली देख लो, लिखेंगे आराम से. मैं सिर्फ रिएक्शन लिखती हूँ. ठीक है, NO2 plus F2 gives you NO2F plus F, दिस इज स्लो. और दूसरा स्टेप है F plus NO2 gives you NO2F, ये हो गया फास्ट. ठीक है, क्या पूछा है यहाँ पर? What is the rate determining step? Which one is the rate determining step? Step number 1 और step number 2? First. Perfect. ठीक है, अभी सपोज मैंने ये स्लो और फास्ट नहीं दिया रहता और मैंने ऐसा लिखा होता है रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2. अब मेरा सवाल ये है कि इन दोनों में से 1 और 2 में से
कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है? अब बताओ पहले क्या ढूंढने का, F और NO2 इन दोनों में से कौन से रिएक्टेंट को सेकंड है दिख रहा है? करेक्ट, बराबर है, सबको समझा? तो विच वन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नाउ? स्टेप नंबर 2 इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अभी समझा? इसे फिर से बताना एक बार। क्या बताऊं? ये सम, हेलो, मिस वो लास्ट वाला नहीं समझा। ये समझा? यहाँ पे स्लो लिखा होता, फास्ट लिखा होता तो ये रेट डिटरमाइनिंग है और ये नहीं है। हाँ वो समझा, अभी वो मैंने समझा। आपको, हाँ अभी ये मिटा दिया, ठीक है? अभी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है पर मुझे ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है? अब इस इक्वेशन को देखकर ये बताओ कि विच वन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये कहाँ कहाँ है, फर्स्ट में कि सेकंड में? सेकंड में। सेकंड में है ना, तो सेकंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्योंकि आप रेट लिख सकते हो स्लो रिएक्शन का ही, आप फास्ट रिएक्शन का रेट कभी नहीं लिख सकते क्योंकि रिएक्शन कब हुआ कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। तो रेट आप लिख किसका सकते हो? जो सबसे स्लो स्टेप होता है। तो इन दोनों में से अभी ये रेट ऑफ द रिएक्शन क्या बता रहा है कि मेरा ये स्लोएस्ट स्टेप है ना, क्योंकि मैंने रेट इसके ऊपर लिखा। तो स्टेप नंबर 2 इज माई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अभी समझा? हाँ मैं समझा। ओके, चलो अभी आज के लिए इतना काफी हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड कैटलिस्ट ऑल्सो। कल पढ़ाती हूँ, अभी आज नहीं, अभी आज पढ़ाने को जाऊंगा तो लेट हो जाएगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट और कैटलिस्ट करेंगे और उसके ऊपर ऐसे ही ओरल क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर देंगे। और इसके बाद तुम लोगों को इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ा दूँ, इतना सुबह तक हो जाएगा। और कल ये सब लिख देंगे, जरा मुझे याद दिलाना, ठीक है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से लिखना बाकी। यश एंड दिवेश, तुम लोग का होमवर्क है ये, मुझे याद दिलाने का कि यहाँ से अपने को लिखना है, ठीक है? Any question in today's हाँ lecture? All the numericals, everything is done. मिस कोई प्रॉब्लम है आज के इसमें? हाँ बोलो। इसमें क्या बोलते हैं, सुबह का थोड़ा जल्दी लो ना लेक्चर। क्या क्या? इस सुबह का लेक्चर जल्दी लो ना, क्योंकि 11 o'clock को मेरा कॉलेज का लेक्चर होता है। अच्छा, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है ना, सुबह में भी बच्चा मेरा 8 से 10 लेक्चर रहता है, समझा? 8 to 10 मेरा लेक्चर रहता है और उसके बाद फिर मैं आधा घंटा थोड़ा नाश्ता वाश्ता करती हूँ और फिर 10:30 पे लेती हूँ, ऐसा होता है। 10 to 12 चलेगा, 10 to 11:30 चलेगा क्या? कितना कितना? 10 to 11:30। नहीं मिस, 11 को एक क्लास कॉलेज होता है मेरा। अच्छा, तो मतलब तुम्हारा लेक्चर 9 से 11 रखना पड़ेगा ना? बट मेरा हाँ लेक्चर रहता सर। है रे बच्चा, मिस मेरा लेक्चर रहता है ना। आफ्टरनून को नहीं होगा? मैं तो आफ्टरनून में एकदम खुशी खुशी लूंगी लेक्चर, तुम लोग को भी टाइम नहीं रहता है। नो मैम, नो, कॉलेज के लेक्चर रहते हैं। हाँ हाँ मिस हम लोग का तो हाँ कॉलेज मिस। का रहता है ना। हाँ वही तो, शाम को 6-7 बजे नहीं ले सकते दिवेश, क्योंकि मेरे को उसके पहले भी लेक्चर रहता है। मेरा लेक्चर 6 बजे से चालू होता है, तो एक लेक्चर 6 से 8 रहता है, फिर 8 से 9:30 में तुम लोग का लेती हूँ। कुछ कुछ लेक्चर 5 बजे रहते हैं, ऐसे है, समझा क्या? ओके मैम, नो एक भी टाइम टेबल हिलाया ना तो क्या होगा पता है, सब क्लास का हिल जाएगा। इस 10 to ऐसे 11:30 ले मतलब लो तो फिर। और अभी सर को पूछना पड़ेगा, सर को कॉल करो और बोलो, फिर सर जैसे बोलेंगे वैसे कर देते हैं। बीरेन सर को मैं मतलब बोलता, सर को। मैं बोलूँ सर को? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सर को, सर से बात हो जाएगी ना तो बोल देना कि ठीक है मिस को चलेगा 10 to 11:30, तो फिर 10 to आपको 11:30 मैसेज का करने चलेगा। के लिए बोलता हूँ। हाँ हाँ चलेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एनी क्वेश्चन इन टुडेज लेक्चर? ये समझा सबको अच्छे से? यस मैम। चलो ठीक है, फिर कल सुबह मिलते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर, बाय मिस। बाय। हाँ मेरे को भी लगता है जो शेड्यूल है वो ठीक ठाक है, मेरा भी सब हिल जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा सब। तो एक का चेंज किया तो पूरा क्लासेस मेरे को चेंज करेगा। ओके बाय, वेलकम।